Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic 3 glands, and these 3 glands are parathyroid, thymus and adrenal gland. So in our last video we have discussed the thyroid gland. So thyroid gland secreted the 3 hormones T3, T4 and TCT. So the basal metabolic rate that is regulated by thyroid gland, and the hypothyroidism is there. If hyposecretion of thyroid hormones are there, then there will be the disease, that is the goiter. So now we are going to discuss firstly the parathyroid. So it is very clear from the name, it is related to the thyroid. So in case of human being, there are the 2 pairs of parathyroid gland, and that gland is, or you can say these glands are present behind the thyroid gland. So you can see the location of the parathyroid gland. Now the hormone secreted by parathyroid gland. Parathyroid gland secrete the hormone named as parathyroid hormone or the parath hormones. So this hormone that is regulated by the circulating level of calcium ion in our body, means the secretion of this hormone that is regulated by the circulation level of calcium ion, and it is also known as hypercalcemic hormone. Hypercalcemic means it increases the calcium ion concentration in our blood, so it is known as hyper. Hyper word is related to the high, like the high blood pressure. So hyper, it is related to high, and hypo, it is related to the less concentration. So now let us discuss the physiological effect of parath hormone. So parathyroid hormone, it is also known as, and it increase the कैल्शियम आयन इन आवर ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयन है उसको इंक्रीज करेगा ये. नेक्स्ट इज इट इंक्रीज द बोन reabsorption and demineralization. Now what is the meaning of bone resorptions? Bone resorption means कि जो bones हैं उनका अवशोषण. reabsorption means अवशोषण. तो और या हम इसको बोल सकते हैं demineralization. So what is demineralization or the bone resorption? So in which the bones, these bones absorb the calcium ion, and the demineralization means the removal of minerals from the bones. Mineralization, what is mineralization? Mineralization means when the ions, the minerals, when these are added to the bones, then it is known as the mineralization. But if there is the removal of these minerals, then it is known as demineralization. What is it? Demineralization. And bone resorption means the reabsorption of calcium ion from the bones, because bones are made up of calcium ion. कैल्शियम की बनी होती है, बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है. तो जब बोन्स बनती हैं तब बोन्स के अंदर कैल्शियम ऐड होता है, और जब उनका डीमिनरलाइजेशन होता है तो उनमें से कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. वाई? बिकॉज जो कैल्शियम है वो सिर्फ बोन्स के लिए रिक्वायर नहीं है, बॉडी के अदर फंक्शंस में भी देयर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम आयन. जैसे हम बोल सकते हैं कि जो नर्व इम्पल्स होगा उसमें भी कैल्शियम आयन रोल प्ले करता है. जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी उसमें भी कैल्शियम आयन रोल प्ले करता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है और फिर आगे फर्दर जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं. सो बोन रिसॉर्प्शन एंड डीमिनरलाइजेशन. दिस हार्मोन ऑल्सो इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन द रीनल ट्यूब्यूल, and also the reabsorption of calcium ion from the digested food.
मतलब हमारी बॉडी में जहाँ पर भी कैल्शियम आयन है उसको बॉडी से बाहर नहीं जाने देना। वाई? बिकॉज कैल्शियम आयन की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके लेवल को मेंटेन करना और उसका रीएब्जॉर्प्शन करना, दैट इज़ डन बाय दिस पैराथायरॉयड हार्मोन, सो इट इज़ नोन एज hypercalcemic hormone. So along with TCT, what is TCT? It is the third hormone secreted by the thyroid gland, thyrocalcitonin, and in our last video I told you that this hormone maintain the calcium ion in our blood. So इस हार्मोन के साथ मिलके ये पैराथ हार्मोन जो है it increase the calcium ion in our blood. So I think you understood the function of parath hormone. After that, the next gland, that is the thymus gland, and this gland also known as gland of immunity. इस ग्लैंड को हम ग्लैंड्स ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ग्लैंड है जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करे, तो ये उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ टाइप की जो सेल्स हैं वो बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है जो फॉरेन पार्टिकल्स के साथ फाइट करेंगी। सो इट इज़ नोन एज द ग्लैंड ऑफ इम्यूनिटी। एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। जो लंग्स होते हैं उनके बीच में ये प्रेजेंट होगी। एंड इट डीजनरेट अलोंग विद द एज। एज के साथ ये ग्लैंड जो है वो डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी जो होता है, उनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। आजकल आपको पता ही है कोरोना टाइम चला हुआ है, तो कोरोना टाइम में बोलते हैं कि जो बच्चे हैं या जो ओल्ड एज के जो लोग हैं उनको कोरोना के जो चांसेस है वो ज़्यादा है, बिकॉज़ उनका जो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। और बच्चों के अंदर ये थाइमस ग्लैंड अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती और जो ओल्ड हैं उनके अंदर डीजनरेट हो जाती है। सो दिस ग्लैंड सिक्रीट वन हार्मोन दैट इज़ नोन एज थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होगा। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन? दिस हार्मोन प्रोवाइड द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये जो दोनों टर्म हैं इनको हम 12th क्लास में समझेंगे कि क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल। बट एक सिंपल वे में अगर आपको मैं बताऊं, सेल मीडिएटेड मीन्स जो मीडिएट किया जाएगा सेल के द्वारा। हमारी बॉडी में जो WBCs होती हैं, वाइट ब्लड कार्पसल्स होती हैं, उनको हम द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, बिकॉज दे फाइट विद द जर्म्स। उन जर्म्स के साथ वो फाइट करेगा। सो द immunity that is regulated by the cells like the WBCs, like the macrophages जो फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर जाएंगे, या जो सेल्स जो जर्म्स के साथ फाइट करेगी उनको हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको हम डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सो दिस gland also provide the humoral immunity, means antibodies are produced in our body in response to the antigen. Suppose अगर कोई एक वायरस, अगर मैं एक सिंपल बात करूँ, ये हमारी बॉडी की जैसे सेल है न्यूक्लियस, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सोल्जर्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और जैसे ये प्लस का जो साइन है ये जर्म्स हैं, तो जब ये जर्म्स बाहर से अंदर आएंगे तो ये एंटीबॉडीज़ जो ये सोल्जर हैं इनके साथ फाइट करेंगे और इनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो जो सेल से रिलेटेड होगी उसको हम बोलेंगे सेल मीडिएटेड, और जो एंटीबॉडीज से रिलेटेड होगी उसको हम बोल सकते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट जो लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं
WBC सेल्स को, और T इट इज़ रिलेटेड टू द थाइमस, कि जो हमारी RBCs WBCs जो प्रोडक्शन है वो बोन मैरो में होता है, और थाइमस में जाके जो ये सेल्स होती हैं वो मैच्योर होंगी. तो दैट इज़ इफ़ दे आर मैच्योर्ड इन द थाइमस देन इट इज़ नोन एज द T lymphocyte. Okay, so after that the next gland, that is the adrenal gland. So in the introduction of this chapter I told you that there is one pair of gland present on both the kidney. जो दोनों किडनी होती हैं उनके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होगी, and that gland is known as adrenal gland. So now let us discuss the structure of adrenal gland and also the hormones of adrenal gland. Now the adrenal gland. So our body has one pair of adrenal gland that is present on the anterior part of the kidney. You can see the diagram. It is the kidney and there are the two kidney, left and the right, and on the anterior part of the kidney adrenal gland is present. This adrenal gland has two parts, the outer region that is the adrenal cortex and the inner region that is the medulla. किडनी के केस में भी हमने पढ़ा था कि जो cortex region जो outer part होगा और medulla जो inner part. So like that the cortex and the medulla. So firstly we will discuss the cortex part of adrenal gland, so and also the hormones of the cortex region. So this cortex region, it is made up of 3 layers. जो cortex region होगा उसमें 3 layers होंगी, और वो 3 layers कौन कौन सी हैं. सबसे पहले जो हम बात करेंगे, there is the outer layer, जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको हम बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा. So outer layer zona glomerulosa, the middle layer zona fasciculata and the inner layer zona reticularis. 3 layers are there, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. Reticularis सबसे inner वाली, middle वाली जो होगी fasciculata, और glomerulosa जो है वो सबसे बाहर वाली. So 3 layers are there in the cortex region. Now the hormone secreted by the cortex region of the adrenal gland are known as the corticoids. उन hormones को हम क्या बोलते हैं? Corticoids. And these corticoids are divided into 2 categories. First is the glucocorticoids and second is mineralocorticoids. So it is very clear from the name, glucocorticoids, it is related to the glucose से related है, ये sugar से related है, और जो mineralocorticoids है ये minerals से related है. So what is the function of the glucocorticoids? To regulate the carbohydrate metabolism. जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, फिर हमारे लीवर के अंदर ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है. हमारी बॉडी में जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज बना लेता है, और अगर ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो वो ग्लूकोज दोबारा से ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है. सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दैट इज़ रेगुलेटेड बाय glucocorticoids. और one example of glucocorticoids is cortisol. So what is cortisol? Cortisol एक हार्मोन है जो कौन सिक्रीट करेगा? द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. और ये किस टाइप का हार्मोन है? दैट इज़ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है. सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म is regulated by these glucocorticoids. Example is cortisol. So now what is the function of cortisol? Cortisol हार्मोन जो है उसके बहुत सारे फंक्शन हैं, और इन फंक्शंस में से भी आपसे ये जो एड्रिनल ग्लैंड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन हार्मोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा. तो ये कॉर्टिसोल है, इसका क्या फंक्शन होगा?
It stimulate the gluconeogenesis. ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स ये ग्लूकोज फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगा. तो ग्लूकोज फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज होगी? जब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा. तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को ये इंक्रीज करेगा, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा. नेक्स्ट इज द लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस. ब्रेक डाउन करेगा लाइपोलिसिस. So lipo word is related to lipids and lipids are the fats. Lysis means breakdown. So it stimulate the breakdown of fats. It also stimulate the breakdown of proteins. So proteolysis means breakdown of proteins. So it inhibit the amino acid रिटेक. जो अमीनो एसिड का रिटेक होगा बाय द ब्लड उसको ये इनहिबिट करेगा. द कॉर्टिसोल हार्मोन. देयर आर द अनदर फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन. इट रेगुलेट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड द किडनी फंक्शन. ऑल्सो इंक्रीज द एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है. तो वो फॉरेन पार्टिकल वो हमारी बॉडी से बाहर भी चला जाता है, किल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट रहेगा. तो उसको हमें रोकना भी है. तो उस इन्फ्लेमेशन को जो रोकने का काम है दैट इज़ डन बाय द कॉर्टिसोल हार्मोन, या इसको हम बोल सकते हैं इम्यूनो सुप्रेसेंट, कि इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करना, उसको रोकना. एंड नेक्स्ट इज द RBC प्रोडक्शन. सो RBC प्रोडक्शन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय कॉर्टिसोल. सो लेट्स रिवाइज द फंक्शन ऑफ द कॉर्टिसोल. एक तो ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लाइपोलिसिस को, प्रोटियोलिसिस को, एंड इट इनहिबिट द अमीनो एसिड रीअपटेक. And next, regulate the cardiovascular activity, also the kidney function, and increase the anti-inflammatory reactions, suppress our immune system. So that is the main function of cortisol. Now let's come to the mineralocorticoids. So mineralocorticoids, it is very clear from the name, minerals. तो जो minerals की कंसंट्रेशन को या उनकी कंपोजिशन को जो रेगुलेट करेगा. सो द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज डन बाय मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एंड एग्जांपल ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड दैट इज द एल्डोस्टीरोन. एल्डोस्टीरोन हार्मोन हमने किडनी वाला जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था हमने वहाँ पे. सो द मिनरल्स की जो अमाउंट को जो रेगुलेट करेगा दैट इज डन बाय एल्डोस्टीरोन. सो द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टीरोन, इट इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल. इट ऑल्सो बैलेंस आवर बॉडी फ्लूइड, द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द ब्लड प्रेशर that is regulated by the aldosterone. Except these mineralocorticoids and glucocorticoids, very small amount of androgen is also released by the adrenal cortex. Andro word androecium, it is related to male part. So a small amount of testosterone is also released from the cortex part of this adrenal gland, and it means regulate the secondary sexual character. So very small amount, mostly the testosterone is secreted by the testes. Now which part is left? That is the adrenal medulla. Now the next part is adrenal medulla. So the inner part of the adrenal gland, that is the adrenal medulla. So hormones secreted by adrenal medulla are known as catecholamines. So there are the two categories, adrenaline and noradrenaline. Two hormones are secreted by the adrenal medulla.
Another name of adrenaline is epinephrine and noradrenaline is norepinephrine. So these hormones also known as the hormones of fight, flight or fright or the hormones of stress or emergency. At the time of reflex action, जब आपको होता है रिफ्लेक्स एक्शन, उस टाइम पे आपको ऐसे लगता है कि जो पेट के अंदर तितलियां सी उड़ने लग जाती हैं, तो वो दैट इज़ बिकॉज वो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज कैटेकोलामाइंस? बिकॉज adrenaline and noradrenaline, these are known as the catecholamines. So it increase the alertness. जब एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं. प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन मीन्स कि जो हमारी जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती है. प्यूपिलरी डायलेशन में जो प्यूपिल हैं वो प्यूपिल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. पीलो इरेक्शन, पीलो इरेक्शन मीन्स कि जो हमारे रोंगटे खड़े हो जाना, जो हेयर्स हैं हमारी स्किन के, जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, उस टाइम पे हमें पसीना आता है. सो स्वेटिंग, हार्ट बीट इंक्रीज. सो दीज आर द यू कैन से द सिम्टम्स एट द टाइम ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, और इस वजह से जो हमारी बॉडी है वो कंट्रोल आएगी. सो स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. सो इंक्रीज इन द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज. जो ब्रेक डाउन है ग्लूकोज का वो मीन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाता है. सपोज अगर हमने एक लॉयन देख लिया और उसको देख के हम डर जाते हैं और एकदम से हमें भागना है. सो मोर ब्लड फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट गोज़ टू आवर मसल्स, ताकि हमारी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी मिले और वो वहाँ से मीन्स हम वहाँ से भाग लें. सो दीज थिंग्स आर ड्यू टू दीज हॉर्मोन्स. ये दीज हॉर्मोन्स आर secreted at the time of the stress, at the time of the emergency. So these hormones are also known as the hormones of fight, flight or fright. After that these catecholamines also increase the breakdown of glycogen into glucose. So it increase the level of glucose in our blood, also the breakdown of lipids and also the breakdown of proteins. जो ये function है glycogen की breakdown that is the same as that of cortisol. cortisol का जो function था उसमें भी हमने यही पढ़ा था, और